عطا فرمائے. ابھی ہم جا رہے ہیں مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ وہ مبارک میدان ہے. حج کا دن جو ہوتا ہے وہ حاجی عرفات میں گزارتے ہیں, رات مزدلفہ میں گزارنی ہوتی ہے. تو ابھی آج آپ نے مکہ المکرمہ کی گرمی کی تھوڑی سی جھلک دیکھی. حج کے موقع پر بتایا آپ کو 55 ڈگری 56 ڈگری تھا. آج تو مشکل کوئی 30 ہوگا, تو شاید اس سے بھی کم ہو. تو آپ نے مکہ کی گرمی کو برا نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ بڑی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا جس شخص نے مکہ کی گرمی کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کیا, اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے. اور کسی دین میں یہ اللہ پاک نے اپنے نبی کی امت پر یہ احسان فرمایا کہ جس نے مکہ کی گرمی کو ہی برداشت کیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے. تو مکہ کی گرمی برکت والی, بولے سبحان اللہ. آپ مکہ کے لوگ مہمان ہیں, مکہ کے مہمان برکت والے, مکہ کے لوگ برکت والے, مکے کا پانی برکت والا, ایسا برکت والا کہ پوری دنیا میں ایسا پانی کہیں موجود نہیں. جس کو اتفاق ہے وہ بولے, جس کو نہیں اتفاق ہے دفعہ اپنا پانی صاف نہیں کرا, بولے سبحان اللہ. ایسا برکت والا کہ پوری دنیا میں ایسا پانی کہیں موجود نہیں. زمزم. سائنٹسٹ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں آخر کیا خوبی ہے کہ جو پیتا ہے اس کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی مٹ جاتی ہے. حضور نے فرمایا کہ پانی مبارک پانی ہے, اس کو جس نیت سے اللہ پاک نیت پوری فرما دیتا ہے. آج کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو شوگر ہے, کسی کو دل کا مسئلہ ہے, طرح طرح کی پریشانی ہے. حضور کا فرمان ہے جس نیت سے پیو اللہ پاک وہ نیت پوری فرما دیتا ہے. تو آپ جتنے دن یہاں پر ہیں زمزم پیے, ٹکا کے پیے, انشاءاللہ یہ آپ کے اندرونی کروں گی ساری بیماریاں ختم کر دیں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہم مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں اور مزدلفہ میں کچھ زیارات آئیں گی جن کی تفصیل بیان کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا. میں ابھی بیان کروں گا, توجہ سے سنیے گا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نہر زبیدہ. نہر زبیدہ کیا ہے؟ آج اسے تقریباً 1250 سال پہلے, کتنا 1250 سال پہلے عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر پانی نہ ملنے کی وجہ سے کئی ہزار حجاج کرام شہید ہو گئے. ملک شام کا بادشاہ تھا خلیفہ ہارون الرشید, اس کی وائف, اس کا نام تھا زبیدہ خاتون. وہ جبل رحمت پر چڑھی, اس نے دیکھا تو جہاں تک اس کی نگاہ گئی اس کو حاجیوں کی ڈیڈ باڈیز نظر آئی. اس نے پوچھا کہ یہ حاجی کیوں شہید ہوئے, تو اسے بتایا گیا کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے, ڈلے کو واٹر پانی کی کمی کی وجہ سے حاجی شہید ہوا. تو اس نے ایک ایسا کام کیا کہ دنیا میں مثال قائم کر دی. آج سے 1250 سال پہلے اس نے ملک شام دریائے دجلہ سے ایک نہر تعمیر کروائی جو چلتے 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 ہزار عرفات تک گئی. آپ بول رہے ہوں گے نہر تو بنائی ہے, بڑا کام کیا کیا. دیکھیں 1250 سال پہلے کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کوئی مشین نہیں تھی. اس وقت کے دور میں پہاڑوں کو ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کر یہ نہر بنائی ہے. اسے بڑے لوگوں نے مطلب یہ کام نہ کرو, تمہارے سر بڑے پیسے ضائع ہوں. اس نے کہا اگر ایک دفعہ ہتھوڑی مارنے پر مجھے ایک سونے کی اشرفی بھی دینی پڑے تو میں زندگی نہیں کام کروں گی. نہر کے کنارے کھڑی تھی, اس سے آگے کاغذات دکھنے کے بلز دکھائے کتنا خرچہ ہوگا, اس نے پانی میں پھینک دیا. کسی نے پوچھا زبیدہ خاتون بتاؤ تو صحیح تمہارا اس نہر پر کتنا خرچہ آیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا اور میرے اللہ کے لیے ہے. یہ کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا. دیکھیے اسلام سے پہلے جب عورت کو کوئی عزت حاصل نہ تھی, کوئی مقام حاصل نہ تھا, اگر کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو جب تک اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کر دیتا تھا لوگوں کے سامنے آنے میں شرمندگی محسوس کرتا تھا. کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو نعوذ باللہ اپنے ماں کے گلے میں زنجیر ڈال کر منڈی میں لا کے بیچاتا تھا. اسلام آیا, حضور کی تشریف آوری ہوئی, ہمیں بتلایا گیا عورت کی ایک عزت ہے, ایک مقام ہے. ماں ہوئی تو قدمت جنت رکھ گئی, بیٹی ہوئی تو رحمت ہو گئی, بیوی کو ایک احترام دیا گیا. اسلام نے عورت کو ایک مقام عطا فرمایا. حضور نے فرمایا جس شخص کے ہاں بیٹیوں کی ولادت ہوئی اس نے اس کی اچھی تربیت کی, اچھی پرورش کی, اچھا کھلایا, اچھا پہنایا, اچھا پڑھایا, اچھی جگہ اس کا نسب طے کیا. آپ فرماتے ہیں جنت میں وہ اور میں اس طرح ساتھ ہوں گی جس طرح دوئیوں کے لیے ہوتی ہے. راوی فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کی زیادہ بیٹیاں نہ ہو, 3 ہو, فرمایا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے. یا رسول اللہ کسی کی 3 نہ ہو, 2 ہو, فرمایا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے. یا رسول اللہ کسی کی 2 نہ ہو, 1 ہو, فرمایا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے. بیٹیوں والوں کو تو خوش ہونا چاہیے. بیٹی آتی ہے تو اللہ کی رحمت گھر میں آتی ہے. اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے اپنی رحمت دینے کے لیے. آج جو بیٹیوں کی ولادت پر, بیٹیوں کی پیدائش پر شکلیں بناتے ہیں وہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے ہم کسی کو کچھ کھلائیں یا پلائیں. دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا, آپ نے اور میں اس دنیا میں آئے, آپ میں سے کسی ہم نے اپلیکیشن نہیں دی تھی, اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی تھی ہم نے اللہ پاک کو کہ اللہ ہمیں ہاتھ بھی دینا, ٹانگیں بھی دینا, پاؤں بھی دینا. اللہ پاک نے یہ رحمتیں پھر مانگی دی. ایک ہاتھ نہ دیتا کیا کر سکتے تھے, ایک ٹانگ سے لنگڑا کر دیتا کیا کر سکتے تھے, ایک آنکھ سے اندھا پیدا کرتا کچھ کر سکتے تھے, نہیں کچھ کر سکتے تھے. تو اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا, اس کو بھیجنا ہے نا, اللہ پاک نے اس کی روزی کا وعدہ بھی اللہ نے دیا ہے, بلکہ ہمارے حصے کے تو اس کے صدقے سے اللہ پاک نے ہمیں دینا ہے.
अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। औरत इस्लाम में बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है, हर रूम में बरकत है, आती है रहमत बनकर, जाती है जन्नत बनकर। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक, अच्छा छोटी सोच वालों को ना ये बात समझ नहीं आती, जिनकी सोच छोटी होती है कि मैं और औरत की इज्जत करूं, मैं और अपने घर वाले की इज्जत करूं, जिनकी सोच छोटी होती है ना, उनको ये बात समझ नहीं आती है। अगर हुजूर की जिंदगी पढ़े ना तो पता चलता है, हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स हुआ है जो अपने घर वालों में अच्छा हो, और मैं तुम सब में से अपने घर वालों में सबसे अच्छा हूँ। तो अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें, बेबी फातिमा तो ज़हरा आपकी साहबजादी से आपका प्यार देखें और आपकी मोहब्बत देखें अपनी अज़वाज मुतहहरात से, अल्लाह अकबर, तो एक अजीम मिसाल, एक अजीम नमूना और एक अजीम सीरत हमें मिलती है जिस पर हम अमल करेंगे तो हमारी दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत में भी बड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। तो अरब के बड़े बड़े मर्द वो काम न कर सके जो अल्लाह पाक ने खातून के हाथ से लिया, उसने बहुत बड़ा काम किया, उसका वो कारनामा, वो काम देखेंगे इंशाल्लाह। साथ इसके लिए दुआ करेंगे अल्लाह पाक उसके सब उसके मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। उसके बाद एक जगह और देखेंगे, वादी महस्सर। वादी महस्सर क्या है? हुजूर की विलादत से 55 दिन पहले, 55 डेज पहले एक बड़ा मशहूर वाक़या पेश आया असहाबे फील का। अल्लाह पाक ने पूरी सूरह फील नाज़िल फरमाई, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। वक्त नहीं है इसका तर्जुमा तफसीर बयान करने का, इसका मफ़हूम बयान करता हूँ। यमन का एक बादशाह था, नाम था उसका अबरहा। उसने देखा कि मक्का के लोग जो है अपने काबे की बहुत ताजीम करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसका तवाफ करते हैं। चुनाचे मैं भी कोई एक ऐसी इबादतगाह बनाऊंगा जिसका तवाफ करवाया जाएगा। तो उसने यमन में एक चर्च बनवाया और उसका तवाफ शुरू करवाया। मक्का से एक आदमी गया, उसने उसके चर्च में जाकर गंदगी पेशाब कर दिया। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अब मैं मुसलमानों के काबे को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं मुसलमानों के काबे को गिरा दूंगा। तो उस नीयत से उसने एक बहुत बड़ी फौज बनाई। ऐसी फौज बनाई, बड़े बड़े हाथी थे, उन पर जो सवार थे उन्हें लोहे के लिबास पहने हुए थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? ऐ मेरे मौला क्या मामला किया? अल्लाह पाक ने फरमाया, मैंने अबरहा की बहुत बड़ी फौज को अपनी छोटी सी फौज से तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह की फौज क्या थी? छोटे छोटे परिंदे थे, नाम था उनका अबाबील। हर एक के पास 3 कंकरियां थी, 2 उनके पंजों में थी, उनकी चोंच में थी। अबाबील आकर वो कंकरी छोड़ता था, सवार के सर से दाखिल होती, उसके लोहे के लिबास को चीरती, दिमाग को चीरती, बदन को चीरती, हाथी को चीर के जमीन में जाती थी। हुजूर ने फरमाया, चूंकि यहाँ अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ, इसलिए जब भी यहाँ से गुजरो तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए तेजी से गुजरो। मैं आपको जगह दिखाऊंगा, हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए अल्लाह पाक के अज़ाब से पनाह मांगते हुए इंशाल्लाह वहाँ से गुजरेंगे। अभी इंशाल्लाह पहले हम नहर ज़ुबदा देखेंगे, मुज़दलिफ़ा के मैदान में जाएंगे, मुज़दलिफ़ा के मैदान में जाएंगे और वहाँ से इंशाल्लाह फिर हम जो है एक मस्जिद की भी इबारत करेंगे, मस्जिद अल-इमरा की बड़ी इमारत मस्जिद है, उसकी हिस्ट्री भी वहाँ जाकर बताएंगे इंशाल्लाह। मौला 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 काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं गरम को, और देखता हूँ कभी मैं गरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा। तो पीली सी आधी दीवार चलती नजर आई, ये नहर ज़ुबदा है। आज से तकरीबन 1250 साल पहले बनने वाली ये नहर 1200 साल तक की नहर चलती रही। हाजी यहाँ से पानी पीते रहो, दुआ करें अल्लाह पाक इसके सब मुश्किल में भी दर्जात बुलंद फरमाए। अपनी अपनी गुफ्तगू को खत्म फरमाकर अगर मेरी गुफ्तगू सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़ात को पता चलेगा। तवज्जो रखें। आपके सीधे हाथ पर नहर ज़ुबदा की ज़ियारत कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें भी अपने रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। आपके उल्टे हाथ पर आपको ट्रेन का ट्रैक नजर आ रहा होगा, बिजली पर यह ट्रेन चलती है, चांदी की मदद से बनाई गई है, के मौके पर आजादी का हम किसानी के लिए कराई जाती है।
قرآن پاک میں اس کا پارہ 2 سورۃ البقرہ میں آیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. یہ مسجد کا ذکر دیا قرآن پاک میں، لکھ لیجیے. کچھ لمحے بعد آپ کی سیدھے ہاتھ پر یہ مسجد آئے گی. اچھا 9 ذی الحجہ کو تھوڑا سلو کریں گے بھائی. پوری دنیا آگے جائیں، پوری دنیا کے مسلمان مغرب کی نماز مغرب کے ٹائم پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز عشاء کے ٹائم پڑھتے ہیں. لیکن جتنے مسلمان یہاں آتے ہیں وہ عشاء کے ٹائم میں مغرب بھی پڑھتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں، اور قضا کر کے نہیں ادا. کیوں؟ کیونکہ حضور نے ایسے ادا فرمائی تھی. حضور نے ایسے نماز ادا فرمائی. اللہ پاک نے قیامت تک کے حج کرنے والے مسلمانوں کو لازم کر دیا کہ میرے بندو جب یہاں پر آؤ تو 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھو. سیدھے ہاتھ پر دیکھیے مسجد مشعر الحرام، قرآن میں ذکر دیا ماشاءاللہ. قرآن پاک میں اس مسجد کا ذکر ہے. اور یہ سارا میدان آپ کے دائیں اور بائیں یہ مزدلفہ کا میدان ہے. یہاں پر حجاج کرام جو ہے وہ رات کا قیام کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں. سارا دن کے تھکے ہوتے ہیں، احرام پہنا ہوتا ہے، اور رات کو کوئی تکیہ کوئی چادر کوئی بستر نہیں ہوتا. لیکن جب پوچھا جاتا ہے کیسی گزری رات، بڑی مزے کی نیند آئی تھی اور سکون، اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے. یہ الٹے ہاتھ پر دیکھیں آپ کو خالی جگہ میں کچھ کنکریاں پڑی نظر آئیں گی. یہ بارش کی وجہ سے گھاس اگ گئی ہے. وہاں سے حجاج کرام شیاطین کو مارنے کے لیے کنکریاں اکٹھا کرتے ہیں. آپ کے سیدھے ہاتھ پر بھی دعا کریں اللہ پاک اسی سال ہمارے کلیم باپو کے ساتھ ہی ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. تو گائز دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرین کا اسٹیشن ہے. یہاں پہ جو حاجی جو آتے ہیں یہاں پہ شیطان کو اس کے لیے. اور یہ ہے یہ سیدھے ہاتھ پر جو آپ کو خیمے نظر آ رہے ہیں، یہ خیمے تو ویسے ہی ہیں جیسے مینار کے ہوتے ہیں، لیکن یہ مینار نہیں ہے. یہ مزدلفہ کے میدان میں حاجی زیادہ، حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے مزدلفہ میں خیمے لگا دیے، اسے نیو مینار کہہ دیا. اور جو اوریجنل مینار ہے وہ آگے انشاءاللہ آگے اس کی زیارت کریں گے. پورا ایک دم بہترین طریقے سے بنا ہے. جو حادثہ ہوا تھا نا جلنے والا، اس کے بعد سے جرمن سے پورا ٹھیک ہے بند کر دیا. نہیں، اب ان کے پورے علیحدہ سے کچن ہوتے ہیں، اور جو گورنمنٹ کے آتے ہیں ان کا تو نہیں پتا. میں نے اس سال یو کے والوں کے ساتھ 5 اسٹار حج کیا تھا، تو ادھر تو لائیو کچن، لائیو باربیکیو سب کچھ. عرفات میں بھی، پرائیویٹ میں تو ہائی پروفائل ہے. پرائیویٹ میں، گورنمنٹ میں جو ہے نا چاول لا کے دیتے ہیں. نہیں الگ وی آئی پی میں رہتے ہیں. ارے بہت جمعرات کے قریب رہتے ہیں. ابھی یہ ہم میٹرو ٹرین کا اسٹیشن کراس کریں گے، تو اسٹیشن کراس کرنے کے بعد ہم وادی محسر دیکھیں گے. وادی محسر دیکھیں گے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. حضور نے فرمایا جب یہاں سے گزرو تو استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کے عذاب سے گزرو. استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے گزرو، کیونکہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو ہر وقت کا عذاب اللہ کا نازل رہتا ہے. تو ہم یہ اسٹیشن کراس کریں گے، سیدھے ہاتھ پر آپ کی وہ جگہ آئے گی، تھوڑی سی خالی جگہ، وادی محسر. بڑے استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تب. یہ جو خالی جگہ ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں. جی حضور نے فرمایا جب تم مزدلفہ کا قیام کرو تو وادی محسر کے اندر داخل نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اس جگہ سے ہٹ کر رہنا چاہیے. تو اس لیے اس جگہ پر انہوں نے کوئی خیمے بھی نہیں لگائے اور یہ جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے. اور آدھی سے زیادہ جگہ پر میٹرو ٹرین کا اسٹیشن آ گیا. ابھی ہم مینا کے میدان میں داخل ہو چکے. وہ جگہ ابھی ہم وہ جگہ دیکھیں گے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ صلاۃ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ صلاۃ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا. جنت سے جنتی مینڈا آیا، جنتی مینڈے کی قربانی ہوئی، سنت ابراہیمی کی ابتدا ہوئی. جو ہم بقرہ عید مناتے ہیں، قربانی والی عید مناتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں مزے لے لے کے، وہ جگہ جہاں سے قربانی کی ابتدا ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ صلاۃ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ پاک کا حکم تھا، اللہ پاک کا امتحان تھا. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے مجھے حکم ہوا ہے، مجھے تجھے ذبح کرنا ہے. 100 سال، کتنا؟ 100 سال تک حضرت ابراہیم دعا مانگتے رہے، یا اللہ اولاد عطا فرما. 100 سال بعد جا کے اولاد ہوئی، اللہ نے حکم دیا ذبح کر دو. اللہ اکبر. بیٹے کو کہا بیٹا تجھے ذبح کرنا ہے، تو بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو اللہ کا حکم ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ نے جو کرنا ہے آپ کر دو، میں صبر کروں گا، لیکن کیا کرنا؟ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دینا. اللہ اکبر. میرا بیٹا ایسا کیوں؟ کہتے جب میں ہاتھ پاؤں ماروں تو کہیں آپ کو لگ نہ جائے اور آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے. چھری پھیرنے لگے
छुरी नहीं फिरती है, पत्थर पर मारी, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। फिर हजरत इस्माइल की गर्दन पर चलाई, नहीं चली, फिर पत्थर पर मारी, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। फरमाते हैं छुरी से, ए छुरी तू चलती क्यों नहीं है? अल्लाह पाक ने छुरी को ज़बान अता फरमाई और कहा, हजरत इब्राहिम से फरमाते हैं, इब्राहिम आग का क्या काम है? जलाना। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, आग का काम जलाना है, और छुरी का क्या काम है? छुरी का काम काटना है। तो आप फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, छुरी कहती है हजरत इब्राहिम से कि जब आपको अल्लाह के हुक्म से नमरूद ने अपनी आग में डाला तो आपको आग ने नहीं जलाया, क्यों नहीं जलाया? तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ए छुरी, अल्लाह ने आपको हुक्म दे दिया था कि ठंडी हो जा, कुल्ला यादा रुकोनी बरदुम व सलामन अला इब्राहिम, कि ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा। तो छुरी कहती है हजरत इब्राहिम से, आपके लिए आग को तो एक दफा कहा था, मुझे 70 बार कहा है कि इस्माइल पर ना चलना, इस्माइल को ना काटना। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से जन्नती जानवर, जन्नती मजा लेकर आते हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर जन्नती जानवर की कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी की सुन्नत की इब्तिदा होती है। और आज हम उस सुन्नत पर अमल करते हुए अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने इलाकों में कुर्बानी की सुन्नत अदा करते हैं। उल्टे हाथ पर ट्रेन का स्टेशन क्रॉस करेंगे, उल्टे हाथ पर पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा पिलर बना हुआ एक स्टोन है, वो उस जगह पर हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को लिटाया था। इंशाल्लाह भी हम देखेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल तो गाइस यहीं पर है जहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को थोड़ा गाड़ी और आगे बढ़ेंगे कुर्बानी के लिए बैठाया था। तो गाइस अभी हमारे गाइड थोड़ा सा बताएंगे आपको इसके बारे में। देख सकते हैं ये बोट के पीछे में ये बना हुआ है, ये देखिए। अभी हम जा रहे हैं एक बड़ी मुबारक मस्जिद की तरफ। मस्जिद का नाम है मस्जिद खैफ। यह मुबारक मस्जिद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मस्जिद में 70 अंबिया कराम ने नमाज अदा फरमाई। कितने? 70 अंबिया कराम ने नमाज अदा फरमाई और 70 अंबिया कराम की यहाँ मज़ारात भी हैं। एक रिवायत के मुताबिक हमारे बाबा हजरत आदम का मज़ार भी इसी मस्जिद में है। ये मस्जिद भी सिर्फ हज के मौके पे खुलती है। मज़ारात के निशान तो मिटा दिए गए हैं, लेकिन हुजूर की हदीस है, हुजूर का फरमान है जो कभी झूठा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 70 अंबिया कराम ने नमाज अदा फरमाई। तो अभी इंशाल्लाह हम उस मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और मस्जिद की ज़ियारत करेंगे। उलमा फरमाते हैं जब यहाँ से गुजरे तो सलाम किया करें, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह। मैं पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह हम सलाम भी करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे हम मीनार वगैरह की भी ज़ियारत करेंगे। अभी इंशाल्लाह कुछ लम्हों में हम इस मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह। आपके उल्टे हाथ पर मस्जिद खैफ का बड़ा मुबारक मंजर। 70 अंबिया कराम ने नमाज अदा फरमाई इस मस्जिद में और 70 अंबिया कराम की मज़ारात हैं। जमरात जी जी, ये जमरात है ना। ये इसी से आगे आप देखें, आपको एक गोल बिल्डिंग नजर आ रही होगी सीमेंट कलर की, ऊपर व्हाइट कलर का खैमा लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है। इसी के बिल्कुल नीचे शयातीन मौजूद है। पहले सबसे पहले छोटा शैतान, फिर मंचला शैतान, फिर बड़ा शैतान। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल, देन मिडिल एंड देन बिग। इसको जमरात बोलते हैं। यहाँ पर रमी की जाती है, शयातीन को कंकरियां मारी जाती है। सीधे हाथ नजर घुमाएगी तो मीना के खैमों का बड़ा खूबसूरत मंजर नजर आएगा। ये मंजर ऐसा मंजर है, ये खैमे ऐसे खैमे हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा मंजर देखने को नहीं मिलता। पूरी दुनिया में ऐसे खैमे देखने को नहीं मिलते। आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरीके से हज की आमद की इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी हैं और क्या ही मंजर होता है। 5 दिन के लिए एक अजीब दुनिया यहाँ पर कायम होती है, एक नई दुनिया सिर्फ 5 दिन के लिए यहाँ पर बसती है और हर कोई एक दूसरे का बढ़कर ख्याल कर रहा होता है और हर कोई ये चाहता है मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। कोई नस्ल, कोई रंग, किसी बिला इम्तियाज, कोई अफ्रीका से है, कोई एशिया से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है। 2 चादरों में है, एक मैदान में है, अपने रब को राजी करने के लिए बैठे हैं, अपने रब की इबादत करने के लिए बैठे हैं। अल्लाह पाक से दुआ। मीना का मतलब है तमन्ना पूरी होने की जगह, वो जगह जहाँ तमन्ना पूरी होती है। तो दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक हमें इसी साल यहाँ पर आने की तौफीक अता फरमाए और जो नेक तमन्ना हम सब लिए आए हैं अल्लाह पाक हमारी तमाम तमन्ना कबूल फरमाए। ज़ियारत कीजिए। और खेमे लगभग कितने लोग आ जाते हैं? 10-20 लाख जी, 15 मिलियन आते 8 से 70 लाख। जी जी जी। 2016 में खर्च हुआ था 1 करोड़ आ गया। हाँ, अगर ये 3 लाख भी होंगे तो 15 मिलियन के 17 हिसाब में से मैं था। मंजर नजर आएगा खैमों का। देखिए हजारों यहाँ से देखें, जब देखे चारों तरफ से 2 लाख
खेमे भी होंगे, 10 मिलियन लोग आ जाएंगे इसमें। तो गाइस देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया स्टेडियम दिख रहा है सामने। तो गाइस हम चलते चलते थोड़ा सा व्लॉगिंग कर ले रहे हैं। देख सकते हैं ये पहाड़े हैं और कोई नियत करेंगे यही है मस्जिद ज़ोराना। और देख सकते हैं ये है जो उम्र नहीं कर रहा है ज़ोराना मॉस्क लिखा हुआ है उसमें करना देख चाहते सकते हैं हैं। नियत करके नमाज पढ़ना। और ये बहुत बड़ी तो जनाब देखिए एक ज़ियारत और है यहाँ। अभी हम लोग वहाँ मीना के मैदान से जब निकले तो मस्जिद ज़हरा, मस्जिद जोरान बोलते हैं इसको। यहाँ से जो है एहराम बांधा जाता है अगर कोई आदमी उम्रा करना चाहे तो और भी हमारे साथ जो लोग आए हैं उनमें से कुछ लोग उम्रा करने के लिए तो अंदर जाके मस्जिद में एहराम को पहन के नमाज पढ़ के 2 रकात फिर यहाँ से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ साहिबाए कराम की कब्र भी है। चलिए आज देखते हैं। सामने एक छोटा सा कब्रिस्तान है जहाँ पर कुछ साहिबाए करामों की कब्र है। तो अब कब्र तो यहाँ वैसे भी सब बराबर कर दी जाती है, लेकिन जो है वहाँ आपको दिखाते ही रहा। ये है कब्रिस्तान छोटा सा जहाँ पे बहुत से साहिबाए करामों की यहाँ पे कब्र मौजूद है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर यहाँ आप देख सकते हैं कोई पहचान नहीं किसकी कब्र कहाँ है, बस कुछ पत्थर है। 70,000 अंबिया इकराम की यहाँ पे कब्रें हैं। तो देखिए आप कुछ कब्रें ऐसी दिख रही हैं जो समझ में आ रही हैं, बाकी कुछ जगह ऐसी भी है जो समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ के कब्रिस्तान ऐसे ही हैं, घेर दिए जाते हैं। और देख सकते हैं आप हुजूर के वक्त का है ना, और ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के लोग हैं जो यहाँ पे अभी दफन है। और आज के दौर में ये ऐसा मंजर है यहाँ का, चारों तरफ वीरान और पहाड़ियाँ, और जो कुछ हरियाली आपको दिखती है यहाँ पे, जैसे ये नजर आ रही हरियाली, ये जो हरियाली आपको नजर आ रही है नेचुरल नहीं है, सब लगाई हुई है क्योंकि ये पूरा बंजर वीरान इलाका है। और सब हज के वक्त में यहाँ लोग काफ़ी तादाद में, कसर तादाद में होते हैं। देखिए आप ये साहिबाए कराम की, अंबियाओं की कब्रें और पीछे मस्जिद ज़ोराना जहाँ से एहराम पहना जाता है। और ये सब खड़ी हुई हैं बसें जो लोगों को लेके यहाँ आई हुई है। ये कच्चा खजूर है और ये कच्चा खजूर लगभग क्या रेट है? 30 रियाल का ये केजी है। इससे आप अंदाज लगा लीजिए 750 रुपये किलो का पड़ा। और देखिए और एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही नायाब चीज़। आइए, यहाँ का लोकल छोटा सा बाजार है जहाँ सारे सामान बिकते हैं। अब एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। अपन अपने रायपुर या छत्तीसगढ़ में जो जाम होता है ना, जाम बीज जिसको बोलते हैं, अमरूद, वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 रुपये किलो के खाएंगे, जिसको भी मोल भाव करके खाए होंगे। आपको एक अमरूद दिखाता हूँ, देखिए वो सामने में रखा हुआ अमरूद, आप उसके कीमत का अंदाजा लगा लीजिए। 250 रुपये का वो जाम केजी पड़ेगा, 10 रियाल मतलब लगभग 250 रुपये। तो आप इससे अंदाज लगा लिए यहाँ पे सामानों की कितनी किल्लत है। आओ देखो साहब, ये सब मेवे वगैरह, ये कच्चे अंजीर, आपने फल्ली देखिए जरा, ये फल्ली क्या केजी बाबा? फल्ली ये 8 रियाल की एक पाव है। तो इससे अंदाज लगा लीजिए कि ये कम से कम 32 रियाल का 1 किलो है। जिसको कैलकुलेशन करेंगे तो करीब करीब 700 रुपये केजी की फल्ली पड़ेगी। देखिए जरा, 700 रुपये ये फल्ली 700 रुपये केजी की है। इसमें 100 रुपये मिला के आप 1 किलो काजू रायपुर में ले सकते हैं। इतना कॉस्टली इसका रेट है फल्ली का, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ होती नहीं, सब एक्सपोर्ट की जाती है। उस हिसाब से यहाँ पे सब चीज़ें महंगी है, लेकिन ठीक है, लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना है। तो देखिए 5 रियाल एक पाव, 20 रियाल का केजी है ये। तो ये 20 रियाल में हो गया लगभग 500 रुपये किलो। 500। तो देखिए सब 500 रुपये किलो का चना है ये। आपने शायद कभी इतना रेट रायपुर में तो नहीं सुना होगा, पर हमारे रायपुर के हिसाब से 500 रुपये किलो का चना है। अब अंदाज लगा लीजिए चना खाना कितना महंगा पड़ रहा है लोगों को यहाँ। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि यहाँ पे चीज़ों की कीमत क्या होगी। बाकी चीज़ की तो मैं बात ही छोड़ देता हूँ, सिर्फ आप चने से अंदाज लगाइए, बाकी चीज़ों का रेट देखने की जरूरत नहीं। आ जाओ। तो यही है बस छोटा सा मार्केट। और कैसा है बाजार, ठीक लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेवे बिक रहे हैं और फल फ्रूट भी है, लेकिन ये है कि हमारे इंडिया से डबल चना क्या भाव मालूम? महंगा है, 400-500 बहुत महंगा है। और ले जाने वाले हजरात ले जा भी रहे हैं। तो अभी हम लोग एक ज़ियारत में आए हैं। हुजूर सरकार ने अपने लुआब यानी अपना जो थूक होता है ना, होठ का थूक, उसके अंदर डाला था, इस कुएं के अंदर। उसका पानी में मिठास आ गई थी। तो आप देखिए ये कुआं है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम इस वक्त माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मस्जिद ज़राना में मौजूद हैं। ये मुक़द्दस मकाम है। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहीं से जंग हुनैन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लौटे तो यहीं से बड़े उम्रे का एहराम बना था और यहीं से बड़े उम्रे का उम्रा किया था। और यहीं से करीब पीछे में जो मस्जिद ज़राना के पीछे में यह कुआं मौजूद दिख रहा है, जो आपको इसका पानी जो एकदम खारा कड़ू रहा करता था, इसका पीना लोगों को दुश्वार हुआ करता था। इसमें आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लौबा दहन डाला, जिसका पानी माशाल्लाह मीठा हो गया। आज भी इस कुएं में पानी मौजूद है, लेकिन यहाँ की हुकूमत ले जाने नहीं देती है। ये इसका पानी जो है बगीचे में सप्लाई कर दिया गया है। माशाल्लाह ये बहुत मुक़द्दस कुआं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लौबा दहन मौजूद है। अल्लाह पाक हम माशाल्लाह इस कुएं की बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। और जो साहबा करम अली रिजवान शहीद हुए थे जंग हुनैन में, उनकी मज़ार भी यहीं जस्ट कब्रिस्तान बना हुआ है माशाल्लाह ताला। शाम को मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक वो खुशबू की लपट आती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचिश ने भी उसका लुत्फ हासिल किया है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इस दर के बार बार हाजिर नसीब फरमाए, इनके फूज़ बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। आइए इंशाल्लाह हमारा काफिला रवा दवा बस की तरफ है। तो गाइस अभी आपने कुएं को देखा, तो गाइस अब हम बस में मिलते हैं। चले मेरा मुकद्दर लाया कहाँ मुझको, मेरा मुकद्दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपके सीधे हाथ पर तो देखिए जी सब आदमी लोग चढ़ रहे, देखिए। अच्छा, इसकी शक्ल ऐसी है जैसे ऊँट की कोहान होता है। जी जी, अरबी में ऊँट की कोहान जो कहते हैं हिरा, इसलिए कहते हैं इसे हिरा। इसकी बुलंदी है 2700 फुट। जबल नूर, जबल का मतलब पहाड़, गारे हिरा, हिरा का मतलब ऊँट की कोहान। इसकी शक्ल देखें आप, वैसे बिल्कुल ऐसे जैसे ऊँट की कोहान होती है। और 2700 फुट इसकी हाइट है, बुलंदी है 2700 फुट। वो यहाँ पर अल्लाह की इबादत के लिए तशरीफ लाते थे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा वरब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये बड़ी 5 आयत कुरान की यहाँ पर नाज़िल है। बस गया लेता है टैक्सी वाला, वहाँ तक पहुँचा देगा, फिर चलना पानी के काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु। ओलियान पैलेस। होटल ओलियान पैलेस। आप देखिए कितनी ऊंची ये इमारत है और सामने में हमारी बस खड़ी हुई है और ये मंज़र यहाँ जाने का। और ये रास्ता जाता है हरम शरीफ के लिए, सामने सीधा हरम शरीफ और सामने ये पहाड़ी, इस पहाड़ी के सामने में हमारी होटल ओलियान। तो ठीक है भाई, चलो चलते हैं होटल के अंदर, क्योंकि अब हमारे आने के बाद हमारे खाने का भी टाइम हो चुका है। और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम सोच रहे हैं कि तवाफ़ करने के लिए जाएंगे हरम शरीफ। तो चलिए, ज़ियारत हमारी कंप्लीट हो गई। चलो तो गाइज़ हम लोग खाने के सेक्शन में पहुंच चुके हैं। तो गाइज़ इस सेक्शन को RE सेक्शन बोलते हैं हमारे होटल में। तो ये पूरा का पूरा एक फ्लोर है जहां पे हम खाना वगैरह खाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ज़ियारत से और अभी हम खाने बैठने वाले हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमारे जो पीछे हैं हमारे सारे टूर वाले ग्रुप है, सब खाना खा रहे हैं। देख सकते हैं सब धीरे धीरे बैठ रहे खाने। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। और तो जो काउंटर है सामने में है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारे जो पीछे में हमारा ग्रुप बैठा है। और एक्चुअली यहाँ पे जो है पूरी की पूरी होटल के जितने भी ग्रुप्स ठहरे हुए हैं वो सब यहाँ आके खाना खाते हैं एक साथ, यानी पूरा फ्लोर ही उसके लिए बनाया गया है। तो गाइज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या स्पेशल बना है हमारे यहाँ। देख सकते हैं ये जो हिस्सा ये हम लोग का बैठे हुए हैं। यहाँ पे काउंटर हमारा यहाँ नहीं है, हमारा काउंटर जो है वो उस साइड है, वो है हमारा काउंटर। और इस साइड हमारे और पीछे देख सकते हैं और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अलग अलग ग्रुप से आए हैं। तो गाइस देख सकते हैं यही हमारा डाइनिंग एरिया है। देख सकते हैं लिफ्ट के सामने में यहाँ पे रूम्स हैं, देख सकते हैं छोटे मोटे। और ये एक वॉशरूम है और यहाँ पे है सामने में हमारा काउंटर। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे खाने में क्या है। चाय है, ये है रोज़ा, पानी,
चावल, तो गाइस ये है कड़ी, और ये है बैंगन की शायद कुछ है तरकारी वगैरह ऐसा बना है। ये देख सकते हैं, ये है चिकन चिल्ली, चिकन चिल्ली देख सकते हैं इस टाइप की बनाई गई है। और चिकन चिल्ली में देख सकते हैं मसाले डाले गए हैं और नॉर्मल लग रही है लेकिन हल्का फीकापन है इसमें वैसे तो गाइस देख सकते हैं ये है रोटियां, रोटियां ऐसी दिखती हैं, देख सकते हैं पापड़ है, स्पेशल चीज़ है गुपचुप यानी गोलगप्पे देख सकते हैं तरह से, और ये सलाद और फल वगैरह। तो गाइस देख सकते हैं फ्लावर्स है, और ये हमारे ग्रुप का बैनर लगा है। एक्चुअली जो सैयद करीम रज़ा साहब है उन्होंने इसे लगाया है इसे बैनर को। और देख सकते हैं ये जो है बाकी का रूम है, बाकी का फ्लोर ये है, देख सकते हैं यहाँ पे सब जो है डाइनिंग वगैरह कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर आते हैं और सब यहाँ डाइन करते हैं। देख सकते हैं ये हमारे ग्रुप वाले नहीं है, ये 2-3 अलग अलग ग्रुप वाले, देख सकते हैं सबका अलग अलग बैनर लगा है, सबका अलग अलग स्टॉल है। और हज टूर उम्रा वगैरह सब देखिए सारे रखे हुए लगे हुए बैनर वगैरह। तो गाइज़ यहाँ पे ना जैसे ही ग्रुप्स आते हैं उनका बैनर चेंज कर दिया जाता है और उन्हें काउंटर अलाउड कर दिया जाता है जहाँ वो अपने सारे गेस्ट को खाना खिलाएंगे और ये सब लोग यहीं पे आके खाते हैं। हम चाहे तो ले सकते हैं दूसरे के काउंटर से, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते। हमारे काउंटर में जो है हम उसी को एंजॉय करते हैं। तो गाइज़ मैंने आपको अभी जैसे बताया कि खाना वगैरह जो था वो थोड़ा सा जो है उसमें नमक मिर्ची थोड़ी कम थी, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट वगैरह खाना खाया जाता है। और यहाँ पे जो है देख रहा होगा आपने, तो चिकन चिल्ली थी, अच्छी दिख रही थी, अच्छी थी, टेस्टी लगी गाइज़ उसकी। देखिए तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम यहाँ आए थे तब मैंने चिकन रोस्ट खाया था, उसका मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन वो जो आइटम था मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा अभी तक के, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि वो बहुत अच्छे बनाया गया था। ये जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है इसमें चीज़ों को, और काफ़ी बुरा नहीं है। तो गाइज़ यहाँ टाइमिंग की भी समस्या है। असल में क्या होता है, जो टाइमिंग है वो अलग चलती है इस यहाँ पे होटल में। यहाँ पे टाइमिंग को मतलब वो कुछ ज़्यादा ही लिहाज दिया जाता है, ऐसी टाइमिंग है। तो गाइज़ दिक्कत भी यहाँ ये है कि जब टाइम आपका क्रॉस हो जाता है खाने का, तब होटल वाले जितने भी स्टाफ वगैरह है वो सब कुछ खाना वगैरह फेंक देते हैं, यानी लिटरली ट्रैश में डाल देते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो बस इतनी ही प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ जो है बहुत ही बढ़िया है, हर चीज़ एक नंबर लगी गाइज़। तो गाइज़ अभी ये था हमारा डे 3। तो गाइज़ अभी हमने आपको ज़ियारत दिखाई, अब मैं आपको डे 4 में और ज़ियारतें दिखाऊंगा। तो गाइज़ हमारे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो गाइज़ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वन में, ठीक है गाइज़। हम दे खुदा से तर गए ज़बाने, कानों में रस घोलती गए अज़ाने, कानों में रस घोलती गए अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक